کورسز کا ڈاکٹر صاحبہ نے جوائن کر لیا ہے ساجد صاحب. جی السلام علیکم. جی جبران. جی ڈاکٹر صاحبہ اگر جوائن کر چکی ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ پلیز اسٹارٹ کریں اپنا سیشن. ویلکم. یس شی از آن لائن. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جبران صاحب آپ کے انٹروڈکشن کا، اور بہت شکریہ آپ سب کا آج کی نشست میں آنے کے لیے بھی اور مجھے مدعو کرنے کے لیے بھی بہت شکریہ اس بات کے لیے. جبران صاحب تعارف تو کروا ہی چکے ہیں کہ ہم کس موضوع پہ آج بات کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم ابتدا کریں آج کے موضوع کی، اگر کوئی پوچھنا چاہے، کوئی سوال، کوئی بات ہو تو پلیز پوچھ لیجیے. میں دیکھ سکتی ہوں کہ کچھ ہاتھ ریزڈ ہیں. وہ سوال ہیں یا وہ کیا ہیں؟ پلیز اگر آپ کلیریفائی کرنا چاہیں. جی ربیہ. جی فرح افضل. فرح آپ کا مائک آف ہے. چلیے ہم دوسرے ہاتھ کی طرف بڑھتے ہیں. فار اٹینڈنس پرپز. What does that mean, فرح؟ میرے خیال سے یہ اپنی پریزنس کو میک شیور کر رہے ہیں میم. آپ اپنا ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. صحیح. مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میں اپنی فائل اپلوڈ کرنا چاہوں گی اسکرین پہ، اور آپ میں سے اگر کوئی مجھے کنفرم کر سکے اگر آپ سارے دیکھ سکتے ہیں اس کو تو بہت خوب ہو جائے گا. جی کیا آپ میری اسکرین دیکھ سکتے ہیں؟ یس میم وی کین سی یور اسکرین. آڈینس میں سے بتا دیں پارٹیسپینٹس. Ma'am, I can't see the screen. Yes, ma'am. Ma'am, I can't see the screen, please. Yes, you can see. ابھی دیکھ سکتے ہیں؟ Yeah. No, it's not becoming big. It's not big, it's tiny. It's tiny. I need to have a big میم اس screen. کو فل موڈ پہ کر لیں. ہاں جی اب ٹھیک ہے؟ No. Still not? نہیں نصب نہیں آ رہی. آپ ری شیئر کر لیں. ہاں جی اب بہتر ہوئی ہے؟ جی میم. No. Ma'am, it's coming, but it's not big screen. It's very small. It's not full screen. No, it's not full screen. It's a small screen. There is somebody, Amy Angelica, whose name is coming up, not your name. Sister Rehana, could you please log in again? Okay, right. Thank you. کیا باقی سب کو نظر آ رہی ہے اسکرین ٹھیک؟ Yes, it is very much visible. Thank you. اوکے
Okay. Yes, ma'am. Yeah, let me take start then. Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. आप सब ने ही काफी सारे अफराद ने ये दुआ सुनी होगी जो हम मामूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अक्सर अदबी, इल्मी, मजहबी नशिस्तों में हमारा जो गुफ्तगू का इब्तिदा है वो इस दुआ से होता है। मामूल के तौर पे हम पढ़ तो लेते हैं, मगर किस हद तक हम इसको समझ पाए हैं, इस बात पे मैं गौर करवाना चाह रही थी आज की नशिस्त शुरू करने से पहले। और इसमें अगर आप बात देखिए कि जिक्र है मेरी जुबान की गिरह खोल दी जाए, और ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, और अगर हम उसके सियाक़ो सबाक़ में जाएं तो बहुत से लोग जानते होंगे कि जुबान की लुकनत थी उनको, जिसकी वजह से ये बात आई थी। मगर इस दुआ की निस्बत सिर्फ इस एक उज़र से नहीं है, इसके मानी जो हैं वो बहुत ज्यादा मुफस्सल हैं। इससे मकसद ये भी है कि हमारी गुफ्तगू जो है वो ना सिर्फ आसान हो जाए बल्कि पुरअसर हो जाए। हम बात समझाने में अपने लिए भी आसानी कर सकें और बात सुनने वाले के लिए भी आसानी कर सकें। तो इसकी तफसील जो है हमें उस पर गौर करने की ज़रूरत है, और हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि हम जो एक अदबी नशिस्तें होती हैं उनमें तो पढ़ लेते हैं, मगर जो हमारी मामूल की नशिस्तें होती हैं, जो हमारे तलबा के साथ सेशंस होते हैं, जो हमारी क्लासरूम होती है, उसमें हम इब्तिदा बिस्मिल्लाह से भी करते हैं या नहीं करते। कितनी क्लासों का इब्तिदा है जो हम दुआ पढ़ने से करते हैं, और हम बच्चों को भी इस बात का आदी बनाते हैं कि वो इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करें या वो दुआ से करें। इवन हमारी जो बहुत सारी इस्लामिक स्टडीज़ की क्लासेस हैं, हमारी रिलीजियस स्टडीज़ की क्लासेस हैं, इवन कुरान कायदा वगैरह की भी जो क्लासेस हैं, उनका इब्तिदा भी हम इस दुआ से नहीं करते, और आजकल बच्चों को आमूल के तौर पे ये दुआ याद नहीं है। तो सबसे पहली तवज्जो तो मैं इसी बात पे चाह रही थी कि हम इस दुआ पे गौर करें और हम सोचें कि आया जब हम बच्चों को पढ़ाने लगते हैं हम इब्तिदा कैसे करते हैं। आज का मौजू तो जिक्र हो ही चुका है, जबरान साहब ने भी मेंशन कर दिया, व्हाई टीच। अब मैंने इस सवाल को जरा अधूरा दानिस्ता छोड़ा है कि क्यों पढ़ाएं। अब इसका अंदाज ये भी हो सकता है, क्यों पढ़ाएं, मैं क्यों पढ़ाऊं, या क्यों पढ़ाना चाहिए। इस बात से पहले थोड़ा सा तारुफ अब मैं खुद भी अपना करवाती चलूं। तकरीबन 25 से ज़्यादा साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, फॉर्मली या इनफॉर्मली, मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ वक्तों में, मुख्तलिफ तरह के तलबा को पढ़ाया है। यूके यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते हुए मुझे 9 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेज और मुख्तलिफ फोरम्स पे पढ़ाया है। आजकल मैं ज़्यादा तौर पे प्रोफेशनल्स को पढ़ाती हूँ जो इदारों में बड़े ओहदों पे होते हैं, और उनकी तरबियत आइंदा के लिए या उनकी टीम को जो उन्होंने तरबियत देनी होती है उसकी तरबियत बेहतर कैसे बनाई जाए,
इस तरह के मौज़ूआत पे मैं काम करती हूँ। जिस वक्त मेरी ये इमरान साहब से जिक्र हो रही थी, फाल्कम विजडम के जो की पर्सन है, कि क्या सेशन रखा जाए, तो उस वक्त मेरे जहन में आया कि सबसे पहली बात, सबसे पहला सवाल जो मेरे अपने लिए ही अपने जहन में आता है कि मैं क्यों पढ़ाती हूँ या मुझे क्यों पढ़ाना चाहिए। अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ, मुझे अपने वक्त का इस्तेमाल करना है, तो वो कैसे किया जाए, उसका मकसद क्या हो, उससे हासिल क्या हो। तो ये मेरा अपना सवाल था और मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ 20-30 अफराद जो इकट्ठे बैठेंगे, हम मिल के जरा इस पे गौर करें कि हम किस तरह से इस मकसद को समझ सकते हैं और किस तरह से मेरी भी इसमें मदद हो सकती है। मैं चाहूंगी कि हम अपनी गुफ्तगू जो है आज की, उसको एक गुफ्तगू के अंदाज में ही रखें। जो आप लोगों के पास इनपुट हो, जो आप लोगों का तजुर्बा है, वो भी मुझे बताएं ताकि मुझे भी सीखने को उससे कुछ मिले, हासिल हो। सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने कई तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, कई तरह के मौज़ूआत पे बात की है। उसमें स्कूल के आम सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस से लेके यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट साइंसेस, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, ये बेसिकली मैं पढ़ाती हूँ। अब चाहूंगी मैं ये कि सिर्फ मेरा ही तारुफ ना हो। मैंने स्क्रीन दानिस्ता छोटी की है और मैं ये तवज्जो भी दिलाना चाहती हूँ कि जिस वक्त मैंने स्क्रीन बड़ी की हुई है, उस वक्त मुझे आपका चैट बॉक्स नजर नहीं आ रहा है, ना ही आप लोगों की वीडियोस वाली स्क्रीन नजर आ रही है। इन केस अगर किसी ने हैंड रेस किया हुआ है या चैट बॉक्स में कोई सवाल छोड़ा है, तो प्लीज मुझे वॉइस इंडिकेशन भी दे दीजिए। कोऑर्डिनेटर साहब, प्लीज आप अगर मुझे उस वक्त इंडिकेट कर दें अगर चैट बॉक्स में कोई सवाल आए, तो बहुत सहूलत हो जाएगी। अभी मैं आपको एक लिंक चैट बॉक्स में दे रही हूँ। जी, ये लिंक मैंने चैट बॉक्स में जो डाला है, मैं चाहूंगी कि आप सारे इस लिंक को खोलिए। इस लिंक में कुछ सवालात हैं आप सबके लिए। उन सवालात के नीचे एक प्लस का साइन है, एक ऐड बटन है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना जवाब वहां पे तहरीर कर पाएंगे। जिस तरह से भी आपको आसानी हो, इंग्लिश, रोमन उर्दू, उर्दू उसमें लिखने की, प्लीज मैं चाहूंगी कि एक एक करके आप उन सवालात के जो जवाब हैं वो ऐड करें। अगर कोई प्लीज मुझे कंफर्म कर दे कि आप लोग लिंक खोल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं देख सकती हूँ कि आप लोग ऐड कर रहे हैं। जो पहला सवाल है कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये लिस्ट मुझे दे भी दी गई थी, इमरान साहब ने शेयर कर ली थी, जिसमें काफी रजिस्ट्रेंट्स के सब्जेक्ट लिखे हुए थे। दोबारा पूछने से मकसद ये है कि जिनके नहीं लिखे हुए थे या जिनमें जर्नल लिखा हुआ था, उनकी तरफ से भी कुछ और तफसील मौसूल हो जाए। बहुत खूब। और मैं देख सकती हूँ कि आप में से कुछ ने दूसरे सवाल पे भी जवाब देना शुरू कर दिया है, जो कि है आप कितने अरसे से पढ़ा रहे हैं।
ہم تقریباً 5 منٹ کا وقت رکھ لیتے ہیں ان سوالات کے جواب مکمل کرنے کے لیے. تیسرا سوال ہے آپ کس کو پڑھاتے ہیں؟ بہت شکریہ. میں دیکھ سکتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے جوابات تحریر کر رہے ہیں. بہت خوب. اور چوتھے سوال کے جواب جو ہیں وہ بہت محظوظ کرنے والے ہیں. بہت خوب. اگلا سوال ہے آپ کیوں پڑھاتے ہیں؟ And it's my passion. یہ جواب مجھے کامن نظر آ رہا ہے. بہت خوب. یہ جواب جس نے لکھا ہے I want to educate people in my surrounding. اور جو اس میں آخری سوال ہے وہ ہے آپ کے چیلنجز کیا ہیں؟ آپ کی ٹیچنگ کے، آپ کے تدریسی چیلنجز کیا ہیں؟ میں دیکھ سکتی ہوں ابھی کچھ لوگ اپنے جواب تحریر کر رہے ہیں. ہم ان کے لیے 1 منٹ اور رکھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ تقریباً 131 پارٹیسپینٹس ہیں یہاں پہ، تو اسی حساب سے میں جوابات کا اندازہ بھی کر لوں گی. تقریباً 12 سے زیادہ افراد ابھی اپنے جواب تحریر کر رہے ہیں. بہت خوب. مجھے اندازہ نہیں تھا اتنا کہ ہمارے پاس اتنے جواب ہوں گے. یہ تو ہماری پوری ڈیٹا بیس بنتی جا رہی ہے. اور ماشاءاللہ ہماری نشست میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو 15 سے 20 سال 25 سال پڑھانے کا تجربہ رکھتے ہیں. Dr. Saiba, there are few hands raised, quite a few in fact. بہت I don't شکریہ know. بتانے کے لیے. Is it, آپ پلیز ایک ایک کر کے اگر ان کو مدعو کر لیجئے سوال کے لیے. there is Farah Afzal, Farah Afzal, جی فرح. Saima Haroon, اور یہ نام تو بہت ہی پیارا ہے، مانو بلی. مانو بلی آپ کا سوال کیا ہے؟ yes. غالباً یہ سوال نہیں ہوں گے، یہ شاید پھر اٹینڈنس والا ہی ہے. تھوڑا Okay, پارٹیسپینٹ I کو can ذرا lower their hand in fact. جی ساجد صاحب میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ پارٹیسپینٹ کو تھوڑا کہہ دیں کہ ہینڈ ریز جو ہے وہ اسی صورت میں کریں کہ اگر ان کا کوئی کویسچن ہو، ادروائز وہ اس آپشن کو آف کر لیں. جی جبران آپ کی بات آئی تھنک سن لی ہے لوگوں نے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. اچھا تقریباً 5 افراد ہیں جو بھی اپنا جواب تحریر کر رہے ہیں، تو ہم 2 منٹ ان کو دیتے ہیں. اور
बहुत खूब। जो आपका तीसरा सवाल यहाँ पे हमने जिसके जवाब हासिल किए हैं ना, आप किसको पढ़ाती हैं, इस पे मैं आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहूंगी। जरा एक दफा आप सारे ही इसको देखिए, इसे स्क्रॉल डाउन कीजिए और देखिए कि क्या जवाब तहरीर हैं। जूनियर सेक्शन, प्राइमरी, कॉलेज, जूनियर सेक्शन, प्री लेवल, 8 years, हाई सेक्शन, जूनियर सीनियर क्लासेस, मैट्रिक। ये मैं आपके जवाबात जो तीसरा सवाल है उसके पढ़ रही हूँ। कॉलेज लेवल, प्राइमरी सेक्शन, जूनियर, प्री लेवल, नर्सरी, प्री लेवल। इसमें अगर थोड़ा सा हम सारे ही गौर करें, हम सभी लेवल्स को पढ़ा रहे हैं। वो लेवल्स जो हमने खुद मुतय्यन किए हुए हैं, वो लेवल्स जो हमने इस तरह से उनकी हल्का बंदी कर दी है कि हम इनको पढ़ा रहे हैं। किसी एक ने भी नहीं लिखा कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम इंसान के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम किसी खास तबके से या किसी खास जो हॉबी या खास किस्म के इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हम उसको पढ़ा रहे हैं जो मैथ्स लवर है, हम उसको पढ़ा रहे हैं जो साइंसदान बनना चाहता है, हम उसको पढ़ा रहे हैं जो जुबानदान बनना चाहता है। हम सारों ने ये लिखा है कि हम पढ़ा रहे हैं हाई सेक्शन को, जूनियर सेक्शन को, प्री सेक्शन को। ठीक है कि हम लोगों ने खुद से ही जो निज़ाम बनाया हुआ है ना, हम उस निज़ाम के अंदर इस कदर धंसे हुए हैं कि उससे निकलना खासा मुश्किल है हमारे लिए। मगर मुझे बहुत खुशी होती अगर मुझे ये जवाब भी किसी से मिलता कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या हम किस उम्र के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब ये बात भी वाज़ेह होनी चाहिए कि हमारी ये जो दर्जा बंदी होती है जूनियर की, प्री लेवल की, हायर सेक्शन की, वो निस्बतन एक उम्र के हिसाब से ही होती है। बाहर की दुनिया में अगर आप जाएं पाकिस्तान से, ये चीज बदल भी रही है और पाकिस्तान में भी बदलनी चाहिए। तालीम के लिए ना तो उम्र की कोई कैद है और ना होनी चाहिए, और हर उम्र इंसान के लिए इल्म सीखने की ही होती है। जब हम इन बातों पे तवज्जो देंगे तो हम किसको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं, इस पे हमारी गिरफ्त जो है वो बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी। मेरे पास जो तलबा होते हैं हर उम्र से होते हैं, उनके लिए ऐसा भी नहीं होता कि वो अगर जूनियर क्लास में बैठे हैं, मैं स्कूल लेवल पे भी पढ़ाती हूँ अभी तक भी, और यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल तक पे भी पढ़ाती हूँ, और हर लेवल पे हर उम्र के अफराद भी होते हैं। तो ये सोच हमारी जो है ना, और जिस वक्त मैं ये सवाल तहरीर कर रही थी आप लोगों के लिए, तो मेरे जहन में बिल्कुल ये ऐसे ही था कि मैं ये जानना चाहती थी कि हमें ये अंदाजा तो हो कि हम जिसको पढ़ा रहे हैं आया हम उसको समझते भी हैं या नहीं, कि हम किसको पढ़ा रहे हैं। और माशाल्लाह ये अगला सवाल जो है, ये तो देख के मुझे बहुत खुशी हुई है कि पढ़ाने का जो जज्बा है, हम जब तक पढ़ाना चाहें, जब तक सांस है हम पढ़ाएंगे। मेरे ख्याल में ये जज्बा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मगर इस जज्बे को हमें डायरेक्शन देनी है, वो डायरेक्शन देनी है जो अल्लाह के यहाँ कबूल भी हो जाए। और इस पे बात मैं आगे भी इंशाल्लाह अगले कुछ लम्हात में करूंगी। अभी मैं सिर्फ आप लोगों के जवाबात देख के उसमें अगर कोई पॉइंट है रेज करने वाला तो वो देखना चाहती हूँ।
अब आप क्यों पढ़ाते हैं जो सवाल है, पैशन, अगेन इसका आपके जवाब का जवाब मैं यही दूंगी कि इल्म से ताल्लुक बनाना और उस इल्म को आगे कैसे पहुंचाना है, हमें मिल के यही बात सोचनी है कि ये हमें कैसे करना है। ये नस्लों को बचाने का जरिया है, और हम जिस नहज पे खड़े हैं वो बहुत ही नाजुक है। जिस तरह के हालात, जिस तरह की माशरे में तब्दीलियां आती जा रही हैं, उससे हमारी जिम्मेदारी बढ़ती चली जा रही है। अब उसको सही रुख कैसे देना है, ये हमें मिल के सोचनी चाहिए चीज। और मैं यही चाहूंगी कि आप माशाल्लाह मेरे से ज्यादा तजुर्बाकार लोग, मेरे से ज्यादा माहिर अफराद भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम मिल के इस बात पे तवज्जो भी दें और इर्द गिर्द अपने बाकी साथी जो हैं उनको भी बताएं कि ये कैसे होगा। देखिए, इसमें किसी ने यहाँ पे लिखा हुआ है जवाब, प्रॉफिट्स प्रोफेशन भी है, और हमें सुन्नत पे अमल की तरफ सोचना भी चाहिए। सुन्नत और अहदीस और इल्म जो है, कुरान हमें ये भी बताता है कि जिससे हमने एक लफ्ज सीखा वो उस्ताद के दर्जे में आ गया। उस्ताद का एहतराम कितना है हम सब जानते ही हैं, मुझे बिल्कुल बेसिक वाली बातें बताने की जरूरत नहीं है। इवन जिनको सिर्फ 1 महीना भी पढ़ाते हुए भी हुआ है, वो भी ये बात जानते होंगे कि एक लफ्ज भी जिससे हमने सीख लिया उसके लिए उस्ताद का एहतराम हम पे वाजिब हो जाता है। क्या हम लोगों ने ये सोचा है कभी, या कितना हम इस बात पे तवज्जो देते हैं कि हम अक्सर बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। जो बच्चे आपके सामने बैठे होते हैं आपके क्लासरूम में, आपके घर में, हमें उनसे सीखने को मिलता है, मगर हम वो एहतराम वापस नहीं लौटाते उनको। जब हम वो एहतराम ही वापस नहीं लौटाते तो फिर हम एहतराम अपने लिए एक्सपेक्ट कैसे करते हैं, हम कैसे इस बात को सोचते हैं कि हमें भी वो एहतराम दिया जाएगा जब हम वो एहतराम देते ही नहीं हैं। तो अगर हम इसी बात को सोच लें कि उस बच्चे से जो हमारे सामने बैठा है, हमने एक लफ्ज भी सीख लिया, वो भी हमारे उस्ताद के ज़िम्मे में आ गया है और हमें अब उसका एहतराम करना है। अगर हम वो एहतराम करेंगे तो फिर हमें जवाबी एहतराम कितना मौसूल होगा। मगर बात तो यही है कि हम कितना एहतराम करते हैं। आखिरी सवाल जो यहाँ पे है, आपके तदरीसी चैलेंजेस क्या हैं? काफी जवाबात यहाँ पे जो हैं वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है इटसेल्फ। हमें खुद ये सोचने की जरा जरूरत है कि आया जो आपका सब्जेक्ट है, जो मौजूद जिस पे आपकी दस्तरस्त है, वो हमारे लिए चैलेंज है, या हमारे लिए चैलेंज वो ताल्लुक बनाना है जो अपने तुलबा से हमें कायम करना है, या हमारे लिए चैलेंज ये है कि जो इल्म हमारे पास है हमें उसे मुंतकिल कैसे करना है। और खुशी हुई कुछ चैलेंजेस देख के, जो जवाबात हैं कि वो कैसे किए जाएं, लाइक हाउ टू ट्रांसफर दैट नॉलेज, हाउ टू बिल्ड गुड ह्यूमन बीइंग। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं यहाँ से कि किस कदर बड़ी जिम्मेदारी है जो हम लोगों ने अपने कंधों पे डाल ली है। अब उसको निभाने के लिए हमें कितनी तगदो चाहिए, आया हम उतनी मेहनत कर भी रहे हैं या नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि मैं इससे ज्यादा आपको कोई दे पाऊंगी। माशाल्लाह खुद इस मजमे में हमारे पास बहुत तजुर्बाकार, बहुत माहिर अफराद मौजूद हैं, तो मैं कौन होती हूँ कि मैं उनको बताऊं कि वो कैसे पढ़ाएं या वो क्या करें। चाह सिर्फ मैं ये रही थी कि मैं कुछ ऐसे सवाल
उठाऊं जिन पे आप खुद सोचिए, तवज्जो दें, इस निशिस्त में बैठे हुए भी और जब यहाँ से हम उठेंगे उसके बाद भी इंशाअल्लाह आप उन सवालों को मुसलसल सोचिए। इन सवालों को बेशक आप तहरीर करके अपने सामने कहीं चस्पा कर लें, कहीं दीवार पे लगाएं, ताकि आपकी नजर उस पे बार बार पड़े और आप उसको सोचते रहें। आपके सवालात और आपके जवाबात जो हैं वो आपकी जिंदगी के साथ, आपके मुशाहिदे, आपके तजुर्बे के साथ बदलते रहते हैं और वक्त के साथ साथ जो जो आप सीख रहे होते हैं उस सीखने के अमल से आपका सवाल और आपका जवाब दोनों बदलता है और मुसलसल हमें उस पर सोचने की या वक्तन फवक्तन सोचने की जरूरत पड़ती रहती है। जी उस्मा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? उस्मा, आपने हैंड रेज किया था। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। इन केस आपका कोई सवाल हुआ तो आप प्लीज बता दीजिएगा, उसमें चैट बॉक्स में दे दीजिएगा। अच्छा जी, मैं अब आ रही हूँ स्लाइड्स पे वापस। ये तारुफ वाली डिस्कशन हमने कुछ कर ली है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट वो सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाती हूँ। आज की नशिस्त में, अभी की नशिस्त में मैं कतई ऑपरेशंस मैनेजमेंट नहीं पढ़ा रही हूँ। जिक्र मैं ये करना चाह रही थी कि होता कुछ यूं है, 2 महीने पहले ही मैं एक क्लास में थी जिसमें तकरीबन 80 प्लस तलबा मौजूद थे, मास्टर्स लेवल के ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो पढ़ रहे थे। और हुआ कुछ यूं कि बड़ा हॉल था जिसमें बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी और जो लैपटॉप मैं इस्तेमाल करती हूँ जिसपे मेरा टीचिंग का मवाद था, स्लाइड्स थी, वो मुझे कनेक्ट करना था उससे। अब मैं कोई बहुत माहिर नहीं हूँ, मैं वहां पे फंस गई। वो मेरी स्लाइड्स जो हैं वो स्क्रीन पे आ नहीं रही थी, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था उससे। तो वहां पे तकरीबन 5-7 मिनट का वक्त जो है वो मुझे उस इंतजार में, उसको खोज में कि कैसे इसको स्क्रीन पे दिखाया जाए करना पड़ा। और बिलाखिर मुझे जो आईटी के माहिर हैं उनसे राब्ता करना पड़ा कि आके वो मेरी मदद करें। जो मेरा मौजू था उस दिन का, वो मौजू यही था कि हम प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, जो भी काम है कर रहे हम, उसमें बेहतरी कैसे लाएं। मैंने उसी तजुर्बे को, उसी लम्हे, स्टूडेंट्स का वक्त बचाने के लिए उन्हीं के सामने रख दिया कि हम ये तो बात कर रहे हैं कि हम बिजनेसेस में बेहतरी कैसे लाएं, बिजनेस जो हम करते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, हम उसको बेहतर कैसे करेंगे। तो मैंने यही सवाल रख दिया तलबा के सामने कि ये क्लास भी तो एक बिजनेस है जो यूनिवर्सिटी कर रही है, और अब ये इसमें एक मसला आया है कि जिससे हमारा वक्त जाया हो रहा है और हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। जो मेरे सामने तलबा मौजूद थे, कई रंगों के, कई मजहबों के, कई उम्रों के थे। उनमें से एक नौजवान जो मैच्योर भी था, बड़ी उम्र तो खैर नहीं कह सकते, मगर फिजिकली भी देखने में मेरे से बड़ा था, नाइजेरियन बैकग्राउंड से, काला, ऊंचा, लंबा। वो कहने लगा कि टीचर को बदल देना चाहिए क्योंकि टीचर को नहीं आता। मैंने एक लम्हे को सोचा, मुस्कुराई भी, और मुझे ये बात माननी पड़ी कि वाकई ये सही है, जब मुझे नहीं आता तो मुझे बदल देना चाहिए।
और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के और भी हल हो सकते थे, मगर ये हल भी बिल्कुल ठीक था। अब अपना ये किस्सा ही यहाँ पे रखने का मकसद मेरा ये था जहन में कि हम में से कितने अफराद हैं जो इस दिक्कत में होते हैं कि उनको आईटी से या इस तरह की चीजों से उतनी सहूलत नहीं होती, वो एक दुश्वारी में रहते हैं करने के लिए। वो अपने से किसी नौजवान बच्चे बच्ची पे, किसी आईटी वाले पे इन्हिसार कर रहे होते हैं कि वो उनकी मदद करेगा तो वो करेंगे। हम लोग खुद ही नई चीज सीखने की तरफ तवज्जो नहीं देते। जब माशरा बदल रहा है, जब अंदाज बदल रहे हैं, जब तरक्की हो रही है, तो सबसे पहले तो काम यही है कि हम खुद को नई इजादात, नए टूल्स, जो नए जरिए तालीम हैं, उनसे हम वाकफियत पैदा करें, हम वो सीखें। आजकल के जो बच्चे हैं, जो आजकल के तलबा हैं, वो मोबाइल नेशन है, वो गूगल वाली पौध हैं, वो हर तरह की एप्स चलाते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर्स, ये एप्स चलाना उनके लिए मामूली बात है। और जिस वक्त हमारी इब्तिदा ही यहाँ से होती है, ओह जी, टीचर को तो ये चलाना ही नहीं आता, तो वहां से ही जो उनका एतमाद है ना, वो डगमगा जाता है कि जब इसको ये आता ही नहीं है तो ये हमें बाकी क्या बताएगा। जो हमारा बाकी का इल्म होता है ना, वहां पे वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो ये एक छोटा सा नुक्ता था जिसको मैं चाहती थी कि आप सब जो हैं उस पे सोचिए कि हमारे लिए पहला काम ये है कि हम नई चीजों को सीखें। हम सोचें कि जो आजकल के दौर की जरूरियात हैं, हम उन पे कितनी ग्रिप रखते हैं। अब बढ़ते हैं आज के असल सवाल की तरफ। तो मैं चाहूंगी जरा एक लम्हा दीजिए आप सारे और सोचिए कि हम किस तरह सिखाते हैं, हमारी क्लासरूम किस तरह से होती है, हम बच्चों को किस तरह पढ़ाते हैं। मैं अपने तजुर्बे पे ही करती हूँ रिफ्लेक्ट। अक्सर होता यह है कि मैं जल्दी में होती हूँ, मुझे फिक्र होती है कि मुझे अगली जगह भी पहुंचना है। मैं इस सोच में होती हूँ ये काम खत्म करो। मैं जल्दी में होती हूँ, क्यों? मेरे पास वक्त कम है, मुझे अगली क्लास की तैयारी भी करनी है। ये जो जल्दी जल्दी है ना, जल्दबाजी का काम शैतान का, हम ये भूल चुके हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, हमें तो आता है, ये सब्जेक्ट तो मैं अरसे से पढ़ा रही हूँ, ये तो कायदा ही है छोटी सी क्लास का, तो हम कर लेंगे ना, मुझे पता है कि क्या है। उसी लम्हे में खोलूंगा सफा और मुझे पता होगा कि हमें क्या करना है। इस तरह के ख्यालात जो है ना, वो हमें तैयारी करने से छुड़वा देते हैं, वो हमें तैयारी करने ही नहीं देते। हम सोचते ही नहीं हैं कि हमें तैयारी भी करनी है, या फिर हम कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, या फिर हम कहते हैं हो जाएगा, या फिर हम ये कहते हैं कि नौकरी के लिए ही तो कर रहे हैं, काम पूरा कर लेंगे काफी है। हम तैयारी उस अंदाज में नहीं करते जिस तरह से उसके करने का हक होता है। हम इस तरह से तैयारी नहीं करते कि हाँ, हम आज की ही नशिस्त को, जो यही चंद लम्हात हैं, जो यही घंटा डेढ़ कुछ मिनट हैं हमारे पास इस क्लास के लिए दिए गए, हम उसमें खास क्या करें, उसमें जिद्दत क्या हो, उसमें ऐसा क्या हो जो हमारे लिए भी कोई नई चीज सीखने का बायस बन जाए। मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगी,
मगर अगर आप खुद गौर करें इन बातों पे तो हमें खुद ब खुद वो नकात, वो पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे जिन पे हमें तवज्जो देने की जरूरत है। तैयारी से मुराद ये भी हो सकती है कि जो भी मौजू हम पढ़ाने जा रहे हैं, आया वो किसी जुबान से है, वो किसी साइंस से है, वो किसी आर्ट और लिटरेचर से है, या वो किसी भी मौजू से है, उसमें नई तरक्की क्या हो चुकी है। किसी भी बायोलॉजी, फिजिक्स, साइंस, किसी भी रिलेटेड सब्जेक्ट से है, तो उसमें अब नई तहकीक क्या कहती है। अगर हम हर लेसन से भी पहले, या चलें एक दिन, एक हफ्ते के लेसन से पहले हम देख लें कि इस मौजू से मुतालिक नई तहकीक क्या आई है, हमारा अपना इल्म कितना बढ़ गया और हम बच्चों को, अपने तलबा को भी नई चीज बता रहे हैं। तीसरी चीज जो हम क्या करते हैं, हम सबको एक ही लाठी से हाँक देते हैं। हम ये बहुत कम सोचते हैं कि जो तलबा हैं, जो सामाईन हैं हमारे, उनकी नौयत क्या है, वो किस लेवल पे हैं, उन्होंने क्या देखा होगा, उन्होंने क्या सुना होगा इससे मुतालिक पहले। हम इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, हम उनको ऐसा क्या बताएं जिससे उनका शौक उस मौजू में बढ़ सके, जिससे उनमें वो कसस पैदा हो कि वो और ज्यादा इस मौजू को समझें या सीखें। एक और चीज जो हम करते हैं, सारा दिन पढ़ा पढ़ा के थक जाते हैं ना हम। सुबह से क्लासेस लेती हूँ मैं, तकरीबन शुरू करती हूँ 8 या 9 बजे अपनी रूटीन, और रात के 8-9 बजे तक मेरा यही काम होता है। तो वो शाम वाली क्लास में अक्सर फिर होता है कि मैं कहती हूँ बस अब बोले ना कोई भी, अब तुम बोलो ना। वैसे तो सुबह वाली क्लास में भी होता है, हमें चाय अगर ठीक ना मिली हो, या वो जब हम प्रिंसिपल के पास से होके आते हैं तो मूड थोड़ा सा खराब हो जाता है अक्सर। नहीं कहते हैं खामोश होके बैठे, किसी की जुबान खुले ना। हम कितना इनकरेज करते हैं अपने तलबा को कि वो सवाल करें, वो खुल के हमसे सवाल कर सकें। या फिर अगर किसी बच्चे ने सवाल कर ही दिया है तो ये कैसा बेवकूफाना सवाल है, ये कोई सवाल था करने वाला, तुम्हें इतनी मामूली सी बात नहीं मालूम। मगर हम ये नहीं सोचते कि उस रवैये से हमने किस कदर उनकी इज्जत मजरूह कर दी, हमने किस कदर उनके जहन पे वो ज़र्ब लगा दी है कि शायद सवाल पूछना बुरा था। हम ये नहीं सोचते कि वो सवाल पूछा क्यों गया है, या उस सवाल के पीछे का सवाल क्या होगा। ये जो मामूली मामूली बातें हैं ना रोजमर्रा की, इन पे गौर करने की जरूरत है। हम ऐसा चाहते हैं कि वो वैसा ही करें जैसा हम कहें। हम रोबोट वाला रिफ्लेक्शन जो है ना, वो बच्चों में देखना चाहते हैं। तुम खड़े हो जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम इसमें ये ऐसे लिखो, तुम वैसे लिखो। हम उनको इस तरह नहीं छोड़ते कि वो क्या सीखना चाहते हैं, वो क्या पसंद कर रहे हैं, या वो क्या करना चाहेंगे। और ये वाली सारी जो बातें हैं, ये हर लेवल, हर उम्र पे लागू होती हैं। इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि ये प्राइमरी स्कूल तक महदूद रहेगी, या इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि ये कॉलेज लेवल तक नहीं होगी। हर उम्र, हर लेवल, हर सब्जेक्ट, हर मौजू पे ये चीजें लागू होंगी। होता क्या है, ये हमारी क्लासरूम होगी। हम अपनी क्लास को ऐसे बना देते हैं कि जहां बच्चे बंध के बैठ जाते हैं।
घबराए हुए भी होते हैं और उनकी सोचने की सलाहियत वहीं पे बंद होके रह जाती है। क्यों ऐसा है या नहीं? अगर किसी का कोई सवाल हो अभी तक तो प्लीज, मैं 1 मिनट को पॉज देती हूँ। अगर आपके कोई सवाल हैं, चैट में कोई सवाल है तो प्लीज बताइए। माशाल्लाह कुछ कमेंट्स हैं चैट में जो मैं देख रही हूँ। साजिद साहब, आपकी नजर से कोई सवाल गुजरा हो तो प्लीज बताइए। ये मैम जस्ट इसमें कमेंट्स हैं, जैसे वो मोहम्मद अमजद खान साहब हैं, इनका कमेंट था regarding to teach the people is it is better to try to reach the students level, and for this we have to prepare according to the students level. बिल्कुल, और बहुत खूब उसके अमजद बाद साहब। फिर जी जी अमजद खान साहब हैं, फिर उनका दूसरा भी ये कमेंट था, it means that it isn't mean that we consider are all students at the same level. तो बेसिकली वो आई थिंक वो एज वाइज या उस बच्चे की जो लर्निंग एबिलिटी है उसके हवाले से उसके लेवल की बात कर रहे हैं। आई डोंट, इस पे अगर कुछ आप कहना चाहें। It means that doesn't mean that we consider all our students at the same level, as we cannot ask a fish to fly. बिल्कुल अमजद साहब, हम आगे इस पे बात करेंगे भी कि हर बच्चे पे हमें तवज्जो देनी भी है और हर बच्चे, हर तालिबे इल्म की अपनी सलाहियत के मुताबिक भी हमें बात करनी है। हर बच्चे की अपनी खसूसियात होंगी, उसका अपना ज़हन होगा। अगर वो एक सब्जेक्ट में तेज है, दूसरे सब्जेक्ट में उतना नहीं है, तो ये सब हमें उसी तरह से सोचना पड़ेगा कि किसके लिए क्या चीज मुफीद रहेगी या वो क्या करना चाहता है। हम असल में बच्चे को मदद देना चाहते हैं, मददगार होना चाहिए हमें उसके लिए कि वो खुद सोच सके कि क्या चीज सही है और क्या चीज नहीं। जो फिल वक्त हमारा निज़ाम है ना, वो सोचने समझने वाली सलाहियत को तकरीबन बंद कर देता है। जी सायरा रहमान, आप कुछ कहना चाह रही हैं? Assalamualaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। Ma'am, what is the role of multiple intelligence in this perspective then? Sorry, say that again. What is the role of multiple intelligence in this perspective? Multiple intelligence. Yes, What do you mean by multiple intelligence? like Gartner's multiple intelligence theory. ओह, बहुत खूब, शुक्रिया ये मेंशन करने का। मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाले से, मगर अगर आप कुछ लम्हे इंतज़ार कीजिए, जो मेरी अगली स्लाइड्स हैं मैं वहाँ तक अपनी बात को लाना चाह रही हूँ और मेरी नज़र वक्त पे भी है, इसके लिए हम थोड़ा शॉर्ट हैं इस वक्त, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से गुफ्तगू को उस पॉइंट तक ले जाऊँ जहाँ पे मैं इंटेलिजेंस वाली बात को ज़िक्र करना। अच्छा जी, अब मैं जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? ओके, साजिद साहब प्लीज एक काम आप कीजिएगा, कमेंट्स काफी मैं देख रही हूँ इसमें, अगर आप वो सेव करते जाएं तो इंशाल्लाह हम बाद में उनको नजरसानी कर लेंगे और अगर उसमें कोई सवाल हुआ तो इंशाल्लाह हम कोई जरिया निकाल लेंगे उसको पहुंचाने का जवाब। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया। सो कमिंग बैक टू दी स्लाइड्स। अच्छा, हमने अपनी क्लासरूम को ऐसे तो बना लिया, अब होता क्या है जब हम क्लास से निकलते हैं तो क्लास का नक्शा कुछ यूं हो जाता है। हकीकत है या नहीं? हमारी मौजूदगी में बच्चे की सलाहियत जिस पे हमने ताला लगा दिया था, बाद में बच्चा जब वो फ्री महसूस करता है, आसान महफूज महसूस करता है, तो वो अपने मुताबिक वो चीजें करता है
जो उसके दिल को लग रही होती हैं। अब इसमें जहां से मैंने बात शुरू की भी थी, जहां पे मैंने जिक्र किया था अपने वाकये का कि जो मेरे साथ हुआ, उसमें हमें नए तरीके तदरीस के सीखने के, नई नस्ल है वो मोबाइल बहुत माहिराना अंदाज में चलाती है, वो कंप्यूटर चलाती है, वो टीवी वगैरह से देख के वो सारी चीजें एड्स वगैरह से सीखती है जो उसे मालूम होती है, और हमें जदीद अंदाज नहीं पता होते, तो एक गैप पैदा होना शुरू हो जाता है। अब वो जदीदियत के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। जो राइट हैंड पे आप कुछ आइकन्स देख रहे हैं, कुछ तस्वीर हैं, ये सारे तदरीसी टूल्स हैं जो आजकल इस्तेमाल होते हैं। जो पहला वाला है प्रेजी, वो मुख्तलिफ तरह की प्रेजेंटेशंस वगैरह के लिए बनता है। यूट्यूब चैनल्स हैं। आज की मेरी निशस्त में भी गुफ्तगू में आप पिक करेंगे, जो मैंने सबसे पहले यूज किया, पैडलेट उसका नाम है, कि उसमें किस तरह से आपके सवालों के जवाबात बहुत आसानी से रिकॉर्ड हो गए। तो इस तरह बहुत सारे टूल्स हैं, और आपको सोचना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट, जो भी क्लास, जिस भी लेवल के लिए आप पढ़ा रहे हैं, उसमें आप किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा नया टूल है जिससे आप बच्चों की तवज्जो हासिल कर सकते हैं। जो मेरा एक पसंदीदा टूल है वो है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग जिसे अब वेस्ट बहुत ज्यादा अहमियत देता है, और उसको बहुत ज्यादा उस पर रिसर्च भी हो रही है कि हम किस तरह से स्टोरी टेलिंग को यूज किया जाए, और उसको हर शोबे में, हर लेवल पे, हर तरह के तालीमी इदारे में उसका जो इस्तेमाल है, उसकी अहमियत साबित हो चुकी है। अगर हम देखें तो ये जो स्टोरी टेलिंग है, कहानियां सुनाने वाला काम, ये तो हमारा बहुत पुरानी मीरास है हमारी। सीना बस सीना कहानी चले आना, ये जो है वो ईस्टर्न हिस्ट्री में बहुत अहम है, मगर हम उसको भूलते जा रहे हैं और वेस्ट उसको अपनाता जा रहा है। अगर हम वापस इसकी तरफ आए तो कहानियों से सीखने का अमल जो है, उसमें होता ये है कि उसमें एक जज्बाती तवज्जो हासिल हो जाती है। आपका एक ताल्लुक जो है आपके सामईन से वो पैदा हो जाता है, और उसी के साथ साथ आपकी तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो मैं चाह ये रही थी कि आप इसको नोट करें कि स्टोरी टेलिंग आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, आया वो सब्जेक्ट कुरान, इस्लामिक स्टडीज का है, या वो मैथ्स, साइंस, लिटरेचर, किसी भी शोबे का है। हर शोबे, हर सब्जेक्ट के हिसाब से स्टोरी टेलिंग का जो है इस्तेमाल वो किया जा सकता है। अब वो इस्तेमाल आपको कैसे करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगला सवाल जो मैं आपसे करना चाहती थी कि हम किसको सिखाते हैं। एक लम्हे को जरा दोबारा सोचिए कि हम किसको सिखाते हैं। इस पे जो गुफ्तगू मुझे करनी थी वो आपके पैडलेट का जो तीसरा सवाल था उस पे मैं पहले ही कर चुकी हूँ, और जो यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, ये एक वीडियो लिंक था जिसमें एक माहिर नफ्सियात हैं और माहिर हैं बच्चों की, जो कि अपना तजुर्बा बता रही हैं कि बच्चा कौन होता है। तो हमें इस बात पे दोबारा सोचने की जरूरत है कि आजकल के जमाने में फिजिकल एज, मेंटल एज, इमोशनल एज, उसका ताल्लुक क्या है और वो कैसे बदलती है वक्त के साथ साथ। मैं ये वाली वीडियो का जो लिंक है वो आपके चैट में डाल देती हूँ, और ताकि ये आप सेशन के बाद अपने तौर पे देख सकें। अभी वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं इसको नहीं प्ले करूंगी। जो बात इसमें करने की थी वो मैंने कर दी है। अगर आप गौर करें कि आजकल
बच्चे और बच्चियों की जो उम्र है वो मैच्योर उतने नहीं हुए, मगर उनकी फिजिकल जो अपीयरेंस है, फिजिकल मैच्योरिटी है, वो वक्त से पहले आ चुकी है। इसी तरह अगर हम कंपेयर करें इस चीज को पिछली सदी में, तो पिछली सदी में किस उम्र का बच्चा क्या कुछ कर रहा था और आजकल इस सदी में वो कहाँ पे है, हमें खुद ये समझने की जरूरत है कि हम जिस उम्र को, जिस क्लास को हम पढ़ा रहे हैं, वो तलबा, वो बच्चे, वो किस मेंटल, इमोशनल, फिजिकल मैच्योरिटी लेवल पे हैं, और उनके लिए वो समझना किस तरह से किसी भी मौजू को समझना किस तरह से मुनासिब होगा, हम किस अंदाज में उनको वो चीज बताएं। तो यहां से मैं आगे बढ़ती हूँ। अगला सवाल ये था कि हमें अपने तलबा के साथ करीबी ताल्लुक पैदा करने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि हम उनसे प्यार और मोहब्बत वाला ताल्लुक रखें। हम ये सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। जो इस वाली स्लाइड पे वीडियो मैंने डाली है 3 मिनट की थी, मगर वक्त की कमी की वजह से अब मैं आपको नहीं ये दिखाऊंगी। ये उस ट्रेनर की वीडियो है जो जानवरों को सुधारती है। ये खातून फिल्मों में काम करने के लिए कई तरह के जानवरों को ट्रेनिंग देती है कि वो किस तरह से एक्ट करें उसमें। जब जानवरों को सुधारा जा सकता है तो हम तो इंसानी बच्चों को, अशरफुल मखलूकात की बात कर रहे हैं। और मेन नकात यहाँ पे यही है कि वो प्यार देती है, वो ताल्लुक पैदा करती है हर उस जानवर से जिससे उसने काम लेना होता है, जिसको उसने सिखाना होता है। अगली स्लाइड पे भी एक वीडियो ही है, और ये फाइल इंशाल्लाह हम आपसे शेयर कर लेते हैं ताकि जो भी ये लिंक्स हैं इसमें वो आप इस्तेमाल कर सकें। उन्हें चॉइस दी जाए। इस वाली वीडियो में भी मेन जो काम था वो यही था कि एक एनिमल ट्रेनर है, एक जानवरों को सुधारने वाली है, जो बता रही है कि वो जानवर को भी चॉइस देती है, बजाय इसके कि उनको सिर्फ कैद कर दे, वो चॉइस देती है कि वो उनको पिंजरे में रहना कैसे सिखाए। जिस वक्त उनके पास चॉइस होती है तो वो खुद अपनी मर्जी से उसमें उसके लिए रहना शुरू कर देते हैं। और हम अपनी क्लासरूम में उन तलबा को चॉइस नहीं देते जिनका ज़हन बहुत बड़े बड़े तजुर्बे करके दिखा सकता है, जो नई इन्वेंशंस कर सकते हैं। क्या हम सोचते हैं उस तरह से बच्चों को पढ़ाने लगे कि यही बच्चे कल को बड़े साइंसदान बन सकते हैं? इवन उसी वक्त में, और पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ भी है कि हमारे शहरों से या देहातों से बच्चों ने बड़े रिकॉर्ड भी कायम किए हैं, मगर उसमें टीचर्स का किरदार कितना था? क्या हमने अपने क्लासरूम के 30, 35, 40 बच्चों में से किसी एक आध पे भी ऐसे तवज्जो दी है कि वो कोई रिकॉर्ड कायम कर सकें, या उनकी किसी सलाहियत को उजागर करने में उनकी मदद की है हमने? अगर हम गौर करें, और यहाँ पे मुझे इस तरह से आना चाहिए था, अगर हम
सिर्फ ये सोच लें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक बच्चों के साथ कैसा था, तो हमें बहुत मदद मिल जाएगी हमारा अपना रवैया अपने तलबा के साथ, बच्चों के साथ बनाने के लिए। और बहुत मामूली बातें हैं, हम सबको मालूम भी हैं, मुझे इसमें कोई तफसील देने की जरूरत है ही नहीं है। झूठ मत बोलो एक आम असूल है, मगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में सुबह से शाम तक भी अगर नोट कर लें, अपने क्लास में भी नोट कर लें, अपने साथी असातिज़ा के साथ देख लें, अपने मैनेजमेंट के साथ, प्रिंसिपल, एडमिन ऑफिस, दूसरों के साथ देख लें रवैया, कि हम आम गुफ्तगू में कभी मजाक के तौर पे या कभी एक नॉन सीरियस से अंदाज में आम तौर पे झूठ बोल जाते हैं। और जो चीज दिखाई दे रही होती है बच्चे उसको बहुत आसानी से पिक कर लेते हैं। बच्चों के साथ हम आम रवैये के तौर पे वादे कर लेते हैं और हम फिर उसको इग्नोर कर देते हैं, हम भूल जाते हैं, हम तवज्जो ही नहीं देते कि कोई वादा किया था। मगर वो हम सुन्नत से भी बगावत कर रहे होते हैं, हम ये बात नहीं सोचते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हमदर्द बच्चों के लिए कोई नहीं था। और हम कितने हमदर्द हैं। वो जो हमारे असातिज़ा के हाथ में सोटी होती है, क्या वो हमदर्दाना रवैया है? फिजिकल अब्यूज की तरफ अगर हम ना भी जाएं, तो जिस कदर हम उनकी इज्जत को मजरूह करते हैं, उन पे सख्त अल्फाज बोल के, उन पे मुख्तलिफ तरह का तंज करके, बात कस के, वो तो मसनून रवैया नहीं है। या फिर हमारा अंदाज होता है एक तल्ख अंदाज के, बच्चे पे रोब रखना है वरना बच्चे शरारतें करेंगे। वो रोब रखने वाले चक्कर में हमारे माथे पे तेवरियां जो रहती हैं, और जो हम एक उस अंदाज में हर वक्त रहते हैं कि हम सख्त मिजाज रहें, हम एक और सुन्नत मजरू कर रहे होते हैं कि हम हल्का फुल्का मिजाज, मजाक वाला अंदाज नहीं रखते बच्चों के साथ। अब ये तो आम रवैया है और इसमें और भी बहुत सारे रवैये शामिल हो सकते थे, मगर वक्त की कमी के लिए मैंने कम चीजें ही रखी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज से हमारे पास तालीम का तरीका भी है, हमारे पास बहुत सारे मसनून तरीके हैं तालीम देने के। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पर यकसां तवज्जो देते थे। अगर हम यही बात सोच लें कि ये जो मसनून तरीके हैं, और हमें अगर वो मालूम भी हैं, अमलों का दारोमदार नियतों पर है, अगर हम इस बात पे तवज्जो दे लें कि हाँ ये मसनून तरीका है, और जब हम क्लास में कदम रख रहे हैं तो हमारी ये नियत हो कि हम सुन्नत नबवी पे अमल करते हुए आज का फरीजा अंजाम देंगे, तो ये सोचिए कि वो जो घंटा डेढ़ की हमारी क्लास है उसमें हमने अपने लिए कितने अजर रख लिए हैं, मगर हम ये बात रखते ही नहीं हैं। साफ वाज़ेह बोलिए, ये मसनून तरीका है। आप सब असातिज़ा हैं, तजुर्बाकार हैं, आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि साफ वाज़ेह अंदाज में बोलना चाहिए। और वाज़ेह बोलने के लिए मतलब क्या है कि आपकी लहजा, आपकी रफ्तार, अंदाज, वो सब पर असर हो, सीखने वाले की तवज्जो रहे, आसानी से समझा जा सके आपको। ये मसनून तरीका भी है और ये बाकायदा अहादीस हैं। मैं इंशाअल्लाह आपको इसकी जो पूरी किताब है जिसमें ये अरबी हदीस तर्जुमे के साथ वो है, वो भी शेयर कर लेती हूँ। रेपिटिशन, तकरार, जब आप कम अज कम भी 3 दफा एक नुक्ता
को बच्चों को बताएं। जब आप जोर देंगे उस बात पे, उस बात की अहमियत उससे उजागर होगी। स्टेज वाइज पढ़ाएं, मरहले तय करें कि जब बच्चे को एक चीज पक्की हो जाए फिर अगली चीज बताइए। मश्क, प्रैक्टिस, समराइज करें, रिवाइज करें चीजों को जो पढ़े हैं, पॉइंट्स प्रैक्टिकल करके दिखाइए अमली तौर पर। और ये सब नबवी तरीके हैं। बीइंग टीचर्स हमें ये तो मालूम होगा कि हाँ ये चीजें हम क्लास में करते भी हैं, और बहुत सारे आप में से करते भी होंगे, मगर इस बात को अपनी नीयत में भी लाइए कि आप सुन्नत को पूरा कर रहे हैं, सुन्नत नबवी को पूरा कर रहे हैं। जब आपके जहन में ये बात भी होगी, आपकी नीयत ये होगी, तो वो घंटे का काम जो आप एज अ जॉब कर रहे हैं वो अजर के तौर पे भी शामिल होता जाएगा। इंटरेक्टिव अंदाज रखिए, बातचीत वाला अंदाज हो आपका। हर तरह के टूल का इस्तेमाल जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। लिख के बताइए, ड्रॉ करके बताइए, एग्जाम्पल्स दीजिए, मिसालों का इस्तेमाल हो। बॉडी लैंग्वेज असर करती है, अपने हाथों का इस्तेमाल हो। और ये सब काफी सारी मुस्तनद अहदीस के साथ साबित है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से पढ़ाते थे। सवाल और जवाब का एहतमाम करें। सवाल पूछिए बच्चे से, उसकी क्यूरियोसिटी जागेगी और वो खुद सोचेगा। जिस वक्त सोचने का अमल शुरू हो जाएगा, वहां से सीखने का अमल बेहतरीन होता जाएगा। कोई सवाल हो अभी तक? इस अभी राइट नाउ इस मौजू के मुतालिक जो अभी आपने जिक्र किया वो तो नहीं है, लेकिन अगर इस पे भी कोई किसी का क्वेश्चन हो तो वो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। एक तो उससे पहले जो है वो कुछ कमेंट्स ऑब्लिक क्वेश्चन था एक वी शुड, सादिया फारूक ने लिखा था चैट बॉक्स में, वी शुड ट्रीट स्टूडेंट्स एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स इंस्टेड ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। और इसी से एक और थोड़ा दूसरी नहज पे सवाल है, वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड बीइंग अ टीचर वी हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर टू कंप्लीट द सिलेबस, यानी वो एक नॉर्मल जो इशू है। और विच टूल इज यूज्ड फॉर स्टोरी क्रिएशन, ये जोफा अलियास हैं इनकी तरफ से, इसको भी अगर एड्रेस कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं इन सवालों को ही ले लेती हूँ। स्टोरी टेलिंग, देखिए सबसे पहले तो आपको किसी भी टूल को खुद समझने की जरूरत है कि आप स्टोरी बनाएंगे कैसे। जो भी मौजू है उसके लिए आपने वो स्टोरी बनानी कैसे है। जैसे आज की डिस्कशन में मैंने 2-3 तरह की स्टोरी, छोटी छोटी अमल जो है वो किए हैं। जो सबसे पहले ऑपरेशंस मैनेजमेंट वाली स्टाइल थी, वो एक स्टोरी थी जो मैंने एक अंदाज में प्रेजेंट की। अब मैंने उसके लिए कोई खास टूल यूज नहीं किया, स्लाइड पे सिर्फ एक लफ्ज लिखा था और उसको मैंने यूज कर लिया। आप जो तीसरी चौथी स्लाइड थी जिसमें बहुत सारे टूल्स थे, आप उन टूल्स में से भी किसी का इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे प्रेजी एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं, या आप सर्च करेंगी तो आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाती हैं। वीडियो प्रेजेंटेशन भी बन सकती है। उस चीज का इस्तेमाल कीजिए जो आपको इजीली अवेलेबल भी हो और आसानी से इस्तेमाल भी हो सके। जो इससे पहले वाला सवाल था कि वक्त की कमी होती है और टारगेट्स अचीव करने का एक प्रेशर होता है, बिल्कुल वो होता है। उसका कोई बहुत खातिर ख्वाह जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि ना तो मैं आपके स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, ना मैं वहां पे कोई बहुत ज्यादा असरअंदाज कर सकती हूँ। मगर उसके लिए आपको कोई ना कोई हल निकालने पड़ेंगे। आप इस तरह के हल भी निकाल सकती हैं कि आप एडिशनल मटेरियल बच्चों को, रिसोर्स मटेरियल कोई प्रोवाइड करें। कि जैसे बच्चों को
یہ مدد تو کر دی کہ انہوں نے کس صفحے سے کس صفحے تک پڑھنا ہے جو ان کے امتحان میں آنا ہے، سبق جو آنے ہیں، کہ وہ جوابات تو ان صفوں سے ان صفوں تک مل جائیں گے، پر جو بچے مزید پڑھنا دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہاں سے کیا حاصل کر سکتی ہیں، ان کی ڈائریکشن سیٹ کرنے کی طرف توجہ دیجیے۔ کچھ کوشش یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ نیگوشیٹ کریں اپنے مینجمنٹ سے، اپنے پرنسپل سے، کہ کس طرح سے آپ اس کو بہتر کر سکیں، اس میں نئی تحقیقی جوابات آپ شامل کر سکیں کورس میں۔ السلام علیکم. Can I ask a question? میں ایک پلے گروپ ٹیچر کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب چھوٹے بچے ہمارے پاس سب سے پہلے آتے ہیں، ڈیفینیٹلی اٹس اے نیو ورلڈ ٹورڈز، کہ آپ دیکھیں کہ ان کے لیے بالکل ایک نئی دنیا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر وہ وہاں پر آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا، بیکاز دے آر بلانگنگ فرام ڈفرینٹ کیٹیگری آف ہاؤسز اینڈ برنگن اپ، کوئی تھوڑا لاؤڈ ہیں، کچھ دھیمے ہیں، کچھ اکیلے ہیں، کچھ نہیں ہیں. تو ہم چھوٹے بچے جو تھوڑے غصے میں ہوتے ہیں، جو نہیں بات کرنا چاہتے ہیں، جو اسٹیرزم کہہ رہے ہیں، جو دور رہنے والے، اکیلے رہنے والے ہوتے ہیں، جو کسی سے ملنا نہیں چاہتے، جو سنگل چائلڈ بھی ہوتے ہیں سم ٹائم، ایسے بچوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے کوئی اچھا مٹیریل، کوئی بات، کوئی ایسی چیزیں جس سے ان کو کہا جائے کہ آپ ان کو میٹ اپ کریں، باقی لوگوں کو، بچوں کو جوائن کریں. کچھ بچے اسی ایج میں کافی نوٹی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ڈر جاتے ہیں، ایک خوف بیٹھ جاتا ہے. بیکاز آئی لرن کہ آپ 5 ایئرس تک سیکھتے ہیں، اور جو آپ کی 5 ایئرس تک جو برنگن اپ ہوتی ہے، جو سیکھتے ہیں، وہ آپ کی ہول لائف میں بہت اثر انداز ہوتی ہے. اس بارے میں اگر آپ کچھ بتانا چاہیں کہ اسکول میں ایسے بچوں کو کیسے ٹریٹ کریں جو نیولی جوائن کرتے ہیں، جن کے لیے بالکل ساری چیزیں نہیں ہیں اور وہ کیسے ملنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ صبا. آپ اچھا میم، اس میں ایک اور تھوڑا بہت، ایک جیسے انہوں نے وہ نوٹی کا ذکر کیا تو ایک کوشچن تھا آصفہ شعیب ہیں ان کی طرف سے کہ ہم اگر بچوں کو فری ہینڈ دے دیتے ہیں، یہ تو چھوٹے بچوں کے تناظر میں بات کر رہی تھی، لیکن وہ ان کا کوشچن یہ تھا کہ اگر فری ہینڈ دے دیتے ہیں تو ڈسپلن جو ہے وہ نہیں رہتا. اور ایک اور اس سے جڑا ہوا جو کوشچن ہے وہ کنڈیوسو لرننگ انوائرمنٹ کیسے بنائی جائے، سیف انوائرمنٹ کا کہا گیا ہے اقراء عباسی کی طرف سے، تو اس کو بھی آپ ایڈریس کر دیجیے. ٹھیک، بہت شکریہ جناب آپ کے سارے سوالات کا. مگر کوآرڈینیٹرز میں سے اگر مجھے یہ کوئی بتا سکے کہ ٹائم جو ہمیں دیا گیا تھا وہ تو ہم پورا کر چکے ہیں، تو اگر تو مناسب ہے کہ ہم سوالات کے جوابات پہ بات کر لیں تو ٹھیک ہے. کوئی کوآرڈینیٹر صاحب؟ میم اٹ واز an 1 hour session، in fact وہ ٹائم ایسا تھا 3 بجے پاکستان کے حساب سے، تو کیونکہ ایک تو رمضان بھی ہے، تو 3 سے 4 بجے کا ٹائم تھا، لیکن آئی تھنک اگلے 12-13 منٹس ہم اس کو مزید کوشچن اینڈ آنسرز کر لیتے ہیں، اور اگر آپ سمجھیں تو آپ کی کوئی، آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے اپنا سیشن تو اسی دوران آپ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، میرے خیال میں فلیکسیبل ہوں، جو جوابات جتنے میں دے سکوں گی انشاءاللہ کوشش کر لیتے ہیں. مگر اگر کسی کو کوئی اہم کام ہے، کوئی جانا چاہتا ہے تو پلیز فیل فری. اور معذرت چاہوں گی ایک دفعہ پھر کہ وقت سے ہم اوپر چلے گئے ہیں. جو پوری بات کرنا چاہ رہی تھی میں نے وہ بھی ابھی پوری نہیں کی ہے، اور ہمارے پاس سوالات بھی ہیں، بٹ الحمدللہ کہ یہ بھی فائدہ مند رہا ہے ہمارے لیے. جو صبا صاحبہ کا سوال تھا کہ چھوٹے بچے، دیکھیے یہ جواب جو اس کا ہے نا وہ میں شروع کی سلائیڈز میں دے چکی ہوں. جواب واحد ایک ہی ہے، اس کا انداز ہم سارے مختلف اپنا سکتے ہیں، اور جواب ہے محبت، پیار. بچے کو جب آپ ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ڈیل کرو گے، جس بھی عمر کا ہے، اور چھوٹا بچہ تو ہوتا ہی محبت توجہ کا پیاسا ہے، آپ ان کو محبت دیں گے وہ ایڈجسٹ ہوگا. ہر بچے کو وقت دیں، اس کا وقت جو اس کو درکار ہے وہ
कॉन्फिडेंस लाने के लिए जो कॉन्फिडेंस वो आप पे कर सके। जब पहले दिन बच्चा आया है वो घबराया हुआ होगा कि वो नए माहौल में आया है। अगर जो खवातीन है उनको अंदाजा होगा, जो मर्द हजरात हैं उनको भी अंदाजा होगा ही, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसको हम टाइट सी चादर में कपड़े में लपेटते हैं उसी तरह से, क्योंकि उसका तजुर्बा सिर्फ जो होता है वो माँ के पेट में रहने का होता है और वहां पे वो एक गरमाइश वाले माहौल में रहा होता है। और जब वो खुली दुनिया में आता है तो उसको वो अंदाज से घबराहट होती है, उसको एक डर होता है, मगर वो फिर वक्त के साथ साथ उससे यूज्ड टू भी हो जाता है और इसीलिए उसको वो तवज्जो, वो माहौल, वो प्यार दिया जाता है कि बच्चा जब एक दफा आपसे मानूस हो जाएगा तो उसका वो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद चलता चला जाएगा। जब बच्चे को ये पता होगा कि हाँ जी अब टीचर में जाऊंगा, मैं क्लास में जाऊंगा, टीचर ने मुझ पे शाउट करना है, चीखना धारना है, मैं होमवर्क नहीं किया तो मुझे स्टिक से मार पड़ेगी, वो चीजें जहन की सलाहियत को एक अलग अंदाज में ढाल देंगी, वो डर और खौफ वाला पैदा करेंगी अंदाज, या उस खौफ से रिटेलिएशन वाला अंदाज, मुतनफ्फर होने वाला अंदाज आ जाएगा जो कि एक बहुत गलत डायरेक्शन में ले जाएगा। मगर जो दूसरा वाला अंदाज है और इसके ऊपर जो दूसरा सवाल था कि बच्चों को फ्री हैंड अगर दे दिया जाएगा, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ इस लफ्ज फ्री हैंड से करूंगी। देखिए जो बात मैंने कही वो ये कि आप चॉइस दीजिए, आप बच्चे को सोचने की तरफ उजागर करें, उसको कोशिश कीजिए कि वो खुद सोचे कि क्या सही है और क्या गलत है। एक्सक्यूज मी, आप उसको सॉरी टू कट यू। मैंने जहाँ तक नोट किया, छोटे बच्चे जब हमारे पास आते हैं दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिलीज। बिल्कुल कुछ लोग हैं जो बच्चों को बड़ा पोलाइट बुलाते हैं, मेरा बेटा, मेरा सोना, कुछ कहते हैं इधर बात सुनो एक, और कुछ कहते हैं लाइक व्हाट यू आर डूइंग, कि नो नो इट्स नॉट अकॉर्डिंग द रूल्स, बिकॉज कुछ फैमिलीज बहुत रूल्ड आउट होती हैं, बड़ों से रिस्पेक्टिव बात करते हैं ऐसे। And I think in the start, we need to be a part of their family. We need to pretend to be like, ठीक है, we talk in the same mode. लेकिन slightly हमें उनको लाइन पे लाने के लिए उनको वैसे ही करना पड़ता है कि if he is listening, you need to listen to me too. उनको फोर्स करना, थोड़ा सा समझाना, थोड़ा टाइम के बाद करना पड़ेगा। और जैसे बच्चे बड़े हैं उनको ये बताना ज़रूरी है, हमें पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, तो पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट करवानी चाहिए कि वो आपकी टीचर हैं। इफ़ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर बुक्स, इफ़ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, तो आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। ऐसी बातें पेरेंट्स को भी समझानी चाहिए। और ऐसी चीज़ें अगर हम लोग कहें तो ये नहीं कि टीचर ने क्यों ये बात फोर्स की है, बिकॉज टीचर्स आर देयर समवेयर मदर, समवेयर ऑफ पार्ट ऑफ आर फैमिली एंड समवेयर पार्ट ऑफ आर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में आने वाले वो लोग जो कि आपसे बड़े हैं। बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि बड़ों की रिस्पेक्ट ज़रूरी है, क्योंकि वो जब रिस्पेक्ट करना सीखेंगे तो बाकी चीज़ें भी सीखना शुरू कर देंगे, उनकी बातों को भी। सो प्लीज़ इसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा 2 मिनट। जी बिल्कुल सबा साहिबा, आपकी बात में कई अहम नकात मौजूद हैं जिन पे हमें सोचने की जरूरत है। एक तो ये कि हमारा कंट्रोल जो है वो सिर्फ हमारे अपने पे ही है, बाकियों पे नहीं है। और ऐसी कोई बात एक्सपेक्ट करना भी हमारे लिए मुनासिब नहीं है। हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम पेरेंट्स को क्या बताएं, वो क्या करें, वो क्या ना करें। ठीक है, आप एक इंस्ट्रक्शन जरूर भेज सकते हैं, आप एक तवज्जो जरूर दिला सकते हैं, मगर इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपना रवैया ठीक कर सकते हैं, आप पेरेंट्स पे कोई कंट्रोल आपका नहीं है। अगर आप इस चीज को एक्सपेक्ट करती रहेंगी तो मेरे ख्याल में एक ओवर एक्सपेक्टेशन आप रख रही हैं। ठीक है, आप जरूर अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि अगर पेरेंट्स की आप तवज्जो दिला सकते हैं, उनके साथ गुफ्तगू हो सकती है कि हाँ जी आप थोड़ा सा मुनासिब करें, मगर आपका उन पे कंट्रोल कोई नहीं है। अगर कुछ कर सकते हैं आप तो वो आप अपना रवैया इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी बात आपकी बहुत अहम है कि
बच्चे मुख्तलिफ माहौल से आते हैं, हर किसी को उस तरह का मुनासिब नरिशिंग माहौल घरों में नहीं मिल रहा होता। कोई बिल्कुल इस तरह के भी आते हैं कि जहाँ पे इवन जुबान लहजे बड़े तल्ख हैं और शायद मुनासिब भी ना हो किसी अंदाज में, मगर उसमें मुनासिब तो यही होगा ना कि अगर आप माहौल वैसा रखेंगे जिस कदर लहजा और गुफ्तगू मुनासिब होगी, तो बच्चा नेचुरली ही, क्योंकि जो नेचुरल सलाहियतें हैं उसमें वो तो हैं, वो उस फर्क को पहचान सकेगा। वक्त लगेगा इस काम में, मगर उसकी पहचान हो सकेगी। हमारा फर्ज ये है, हम पे वाजिब ये है कि हम अपनी कोशिश जारी रखिए। और वो जो हम सबका अहद था ना कि हमारा पैशन है, हमने आखिरी सांस तक पढ़ाना है, तो वो पैशन जो है वो हमें सिखाता है कि हम आखिरी सांस तक ये अपनी कोशिश जारी रखें कि हम अपना लहजा, अपनी गुफ्तगू, अपनी कोशिश उसको सही रखेंगे। और बाकी कुछ हमें अल्लाह से दुआ की भी जरूरत है और कुछ हमें बच्चे पे भी छोड़ने की जरूरत है कि वो समझे इस चीज को कि क्या चीज बेहतर है और क्या चीज बेहतरीन है। Sorry to cut you again. देखिए, if in the class of 30 kids in a classroom, then अगर हम वहाँ पर किसी एक बच्चे को या दो बच्चे को अलाउ करते हैं कि he can or she can speak loudly with the teacher और not respective way में टीचर से बात करें, तो बाकी बच्चे भी नोटिफाई करते हैं, because if one is saying अस्सलाम वालेकुम teacher, second is saying अस्सलाम वालेकुम and teacher says वालेकुम अस्सलाम, and they feel teacher is quite happy when we are doing and performing in that way. Oh, you done a good job. तो वो वहाँ पर खुश होते हैं कि किया। इन द सेम वे अगर हम एक को करते हैं और उसके इस तरह के रिस्पॉन्स पे हम चुप कर जाते हैं, देन दे ऑल नीड टू सी कि भाई ये क्या हुआ, टीचर तो चुप कर गई, ऐसे ऊंचा बोलेंगे, नेक्स्ट टाइम हमारी दफ़ा भी चुप करेंगी। हमें भी उनको ये समझाना ज़रूरी है, इफ़ इट्स नॉट अ फिजिकल पनिशमेंट, देन इट नीड टू बी अ मेंटली punishment कि भाई no one gonna talk to him because he's not the one of us, he's the one who is not respecting us. तो हमें इस तरह की चीजें क्लास में अलाउ करनी चाहिए at being a मतलब प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर, यस यू कैन डू इट कि आप ये करें, क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो पेरेंट्स को भी पता चलेगा, क्योंकि वो जाके ये जरूर बताते हैं आज हमें टीचर ने पनिश किया, आज हमें टीचर ने मारा, आज हमें टीचर ने ये किया, पेरेंट्स लड़ते हुए आते हैं, बट देयर इज नो राइट the teachers have to say आपके बच्चे ने पता है क्या किया है, in the whole class he stand and spoke like this. No, we are not allowed because it's not in the school regulations, it's not in the, you need to treat kid really politely. We are here to treat them, we are here to teach them, we need to teach them के rules regulations के अलावा what is the criteria to sit in a class, कैसे होमवर्क करना है। अगर हम आपको बना रहे हैं वहां पर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हमारे ऊपर ही है, तो ये थोड़ा सा जरूरी। आप बिल्कुल बचा कह रही हैं कि देखिए, मेरा कहने का मकसद हरगिज ये नहीं था कि आप बदतमीजी अलाउ करेंगे बच्चे को, नहीं, ये आपको समझने की जरूरत है और बच्चा उस चीज को उस स्टेज पे नहीं समझ सकेगा कि क्या चीज वैसे सही नहीं है और क्या गलत नहीं है। और इसके अलावा भी अगर आप बैकग्राउंड में देखिए तो आजकल का माहौल, आजकल का माशरा जो है वो हमें बहुत डीपली समझने की जरूरत है उसको। बहुत सारे बच्चे जो आ रहे होंगे वो ब्रोकन फैमिली से होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन पे कई तरह के नफ्सियाती असरात होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो किसी ऐसे सदमे से गुजर चुके होंगे जिनके असरात उनकी ज़हनी, इमोशनल, जज्बाती नशोनुमा पे असरअंदाज हो रहे होंगे। आप उन सारी चीजों को समझिए, आप उन रवैयों को मुनासिब करने के अंदाज में लाइए, मगर हरगिज आप इस तरह का रवैया या इस तरह की गलती की इजाजत क्लासरूम में ना दीजिए जो कि बाकी 10-12 बच्चों पर असरअंदाज होने लग जाए। आप उसी लम्हे
टोकिए जरूर जब एक बच्चा गलत कर रहा है, या उसकी तवज्जो दिलाइए। अब ये आप पे मुनहसर है कि आप किस तरह से उस बच्चे को समझाएं कि क्या चीज गलत और क्या चीज सही है। आप इस उस पे ना जाइए कि बच्चे से खुद भी जवाबी बदतमीजी करने पे लग जाए, वरना वो तो बच्चों के लिए, ना सिर्फ उस बच्चे के लिए और बाकी बच्चों के लिए भी एक गलत अंदाज हो जाएगा। वो सारे उससे गलत चीजें सीखेंगे। हमारे लिए, असातिज़ा के लिए बहुत ज्यादा अहम है कि हम सबसे पहले अपने हर रवैये, अपने हर अंदाज की नजरसानी खुद करें। हम अपना एहतसाब खुद करें कि हम किसके साथ कैसा रवैया रख रहे हैं। यकसा रवैया आपने बच्चों के साथ रखना है, मगर उन यकसा रवैये के साथ साथ आपने ये भी सोचना है कि जो भी बात आपने कहनी है वो आपने अपने सामई की समझ के मुताबिक कहनी है। और सुन्नत भी यही है, यानी जो जिस बात को जिस अंदाज में समझ सकता है, आप उससे वैसे ही बात कीजिए। एक जो गाड़ियों को समझने वाला है, गाड़ियों का मैकेनिक है, मरम्मत करने वाला है, अगर किसी भी तरह की बात समझाने के लिए आप उसको मिसाल उसके मुताबिक देंगी जो उससे शोबे से मुतल्लिक है, जिसको वो समझ सकता है, तो वो उसके लिए आसान होगी, बजाय इसके कि आप उसको मिसाल दें किसी अस्पताल से या किसी इंसानी तिब्बी मुआयने के हवाले से, जबकि समझाना आप गाड़ी की बात चाह रहे हैं। तो ये चीज बहुत अहम है इसमें। मैं इस बात को यहाँ पे अब क्लोज करना चाहूंगी। माजरत चाहती हूँ कि हमने 15 मिनट ऊपर भी वक्त ले लिया है। एक काम जो मैं कर सकती हूँ वो ये कि अगर आप लोगों के मजीद सवालात हैं या गुफ्तगू कोई है, तो वो आप ईमेल कर सकते हैं फैल्कन विजडम वालों को, और इंशाल्लाह अगर वो मुझ तक पहुंचेंगे तो मैं कोशिश कर लूंगी कि हम वहां से कुछ जरिया निकाल लें जवाबात देने का, या अगर आप लोग चाहेंगे फाल्कन विजडम वाले हमें फैसिलिटेट करें मजीद किसी सेशन के लिए, तो हम वो भी कर सकते हैं। मुझे मालूम है जो एक और इनिशियल सवाल के लिए जब मैंने बात की थी इंटेलिजेंस वाले पे, हम वहां तक गुफ्तगू अपनी ले जा ही नहीं सके, पर मुझे अगर आप स्लाइड्स आगे ले जाने का मौका दीजिए, सिर्फ 1 मिनट दीजिए, और मैं आपको यहाँ पे बात ले जाती हूँ। क्या मेरी स्लाइड देखी जा सकती है अभी भी? यस मैम। बहुत शुक्रिया। ओके, ये एक कोटेशन है जैक मा की तरफ से, जो बड़े जाने माने बिजनेसमैन हैं। अलीबाबा ग्रुप चाइना से ओरिजिन है जिसका, आप लोग अगर जानते हो, तो उनका कहना है अगर कामयाबी हासिल करनी है तो आपका EQ अच्छा होना चाहिए। EQ इज इमोशनल कोशेंट। EQ इमोशनल इंटेलिजेंस से निकली हुई बात है कि आपकी कामयाबी जो है वो मुनहसर करती है इमोशनल कोशेंट पे। अगर आप अपनी कामयाबी को देरपा बनाना चाहती हैं, सस्टेनेबल रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी जरूरत है इंटेलिजेंट कोशेंट की, IQ की। इंटेलिजेंट कोशेंट यानी आपका IQ ज्यादा हो तो आपकी कामयाबी जो है वो ज्यादा देरपा हो सकती है। तीसरी बात जो उसने की है वो ये कि अगर आप इज्जत हासिल करना चाहते हैं तो आपका LQ अच्छा होना चाहिए, एंड LQ इज लव कोशेंट। तो बात फिर वहीं पे आ गई है जो कि सुन्नत नबी भी है कि आप हमदर्दाना रवैया रखिए, आप हुस्ने सलूक वाला रखिए।
लव कोशेंट के लिए जो एक्सप्लेनेशन है वो हार्ट बनाई गई है. हार्ट मीन्स आजिजाना रवैया, हमदर्दाना रवैया. हालात के मुताबिक आपकी हर क्लासरूम नई क्लासरूम होगी, हर लम्हा उस क्लासरूम का एक नया होगा और आपको उस लम्हे के मुताबिक रिएक्ट और एक्ट करना है. रिस्पेक्टेबल रखिए, एहतराम वाला रवैया रखिए, अमानतदाराना. आपके पास जो इल्म है वो एक अमानत है. उस क्लास के लिए जो आपको वक्त दिया गया है स्कूल की तरफ से वो भी एक अमानत है. जो आपकी सलाहियतें हैं, जो वालिदैन ने बच्चे आपके पास भेजे हैं, वो भी अमानत हैं. आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस अमानत में किसी भी तरह की खयानत ना होने पाए. सो वो जो मल्टीपल इंटेलिजेंस वाला एक कॉन्सेप्ट था, सो हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस IQ वाले माने में, और फिर लव कोशेंट. हमें इन सब को यकसा इस्तेमाल करना है, एक वक्त में इन सब का इस्तेमाल करना है और यहीं से हमारी मदद होगी. बहुत शुक्रिया और अगेन माजरत है कि हम वक्त से ऊपर गए हैं. मैं कोशिश करूंगी कि इंशाल्लाह ये जो फाइल थी ये आप लोगों को ईमेल करवा सकूं. मुसव्वर साहब, क्या हमारे पास ये इंतजाम है हम पार्टिसिपेंट्स को ईमेल कर सकें? जी मैम, इंशाल्लाह इसकी जो हमारे पास रिकॉर्डिंग है वो हम अपलोड कर देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे. वो उसमें 2-3 रोज़ इंशाल्लाह लग जाएंगे. और जो इसके साथ अगर आप फाइल है तो आप मैं अपना ईमेल एड्रेस आपको दे दूंगा, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा और मैं आगे जो है वो तमाम को ईमेल कर दूंगा. थैंक यू सो मच. और जो स्लाइड्स हैं उनकी भी अगर कोई पिक्चर्स एक एक दफ़ा साथ अटैच कर दी जाएं, सो वी शुड नो कि क्वेश्चंस क्या थे, हमने क्या डिस्कस किया. ठीक है. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर द आंसर्स. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. जी इसके साथ थैंक यू वेरी मच मैम. अपनी पूरी टीम प्लीज की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. और ये बहुत ही एक इंटरेक्टिव सेशन था और मेरे तो बहुत ज़्यादा विजन क्लियर हुआ और हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए ये बहुत ही एक जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था. हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स थे वो किसी न किसी एजुकेशनल बैकग्राउंड से ही तक रखते थे. उम्मीद है कि उनकी भी जो है वो तस्कीन हुई होगी, उनकी भी जो है वो सैराबी हुई होगी इस तरह से कि किस तरह से वो अपने जो प्रोफेशन है उसको एक सिर्फ प्रोफेशन न ले बल्कि इसको जो है वो एक सुन्नत का दर्जा भी दे. एक प्रॉफिटिक जो इम्पोर्टेंस है इस पेशे की उसको भी जान सकें और बच्चों को जो है वो मुस्तकबिल का के लिए अहम समझते हुए उनकी किस तरह से लर्निंग हो सकती है, किस तरह से उनको हम एक हाई पोटेंशियल ह्यूमंस या एक अच्छी लर्निंग जो है किस तरह से करवा सकते हैं. तो एक दफ़ा फिर मैं अपनी पूरी फाल्कन विजडम फाउंडेशन टीम की तरफ से उस प्लेटफॉर्म से डॉक्टर साहिबा का, उनके क्वालिटी टाइम का, अपनी मसरूफियत से उन्होंने वक्त निकाला, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. और हम मज़ीद इंशाल्लाह ताला उनके इस तरह से सेशंस मुनक़िद करवाते रहेंगे ताकि अपने पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनसे ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें. बहुत शुक्रिया जी. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर समर जावेद फॉर योर टाइम. और अभी भी इसमें भी कुछ लोगों ने कहा था कि आपका एक और सेशन भी होना चाहिए. तो इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह आपसे इन टच रहेंगे और फ्यूचर में इस तरह का एक और सेशन भी इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे. बहुत शुक्रिया जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह.